Welcome to the last trade. We are here with an interesting topic, reversal. This is purely chart and single indicator based strategy, and trust me, it's my personal favorite. Even today I used it to make some big profit. So let's start the video. What the heck is going on down here? Just be aware of some price action, and if you are not, don't worry. In this video we are talking about a simple strategy or a prediction of reversal before it actually happens. This strategy is so simple that even a 10-year-old can make profit using this, as we believe trading is an art and anyone with simple knowledge can become trader. All you need is, for this strategy at least, is chart and RSI. Let me start with this. First, open your stock or index. I'm opening 5-minute chart. This strategy you can use in 5 minutes or 15 minutes. Go to indicators and type RSI. Now what you have to do, keep settings as I say. RSI is a big topic and is not possible to cover it in one video. So if you are willing to know more about it, please let me know. So we don't need MA, we don't need this, we don't need this, we don't need this. We have to keep it 60 and the below 140. Okay, now we'll keep it, you can go for green for the one line, red for the below one line, we don't need this, we don't need this. ओके, गुड टू गो। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली 70 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है, इधर 70 पे हॉरिजॉन्टल लाइन और एक 80 पे। ठीक है, आरएसआई आपको बताता है मार्केट की स्ट्रेंथ कैसी है। अगर आरएसआई इस रेंज में है तो मार्केट एक गुड गोइंग स्ट्रेंथ में है। आरएसआई इसको अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है 60 को, तो हम ये सपोज करते हैं कि मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। मार्केट 70 को तोड़ती है और 80 इज़ ओवर स्ट्रेच्ड मार्केट। 80 से ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा ओवर स्ट्रेच्ड है। स्टॉक्स ओवर बॉट ओवर स्ट्रेच में ज़्यादा नहीं रह सकते, इंडेक्स रह सकता है। स्टॉक्स एक्चुअली अगर कोई अच्छा स्टॉक है और वो ओवर सोल्ड एरिया लाइक 20 के आसपास आ गया है, तो देयर विल बी अ ह्यूज बाइंग कमिंग एनी टाइम। देयर मस्ट बी नॉट एनी कन्फ्यूजन। सो दिस इज़ 40 एंड दिस इज़ 60, दीज आर मेन। ये एक मेन एरिया है। 70 और 80 मैंने आपको एक जस्ट एक एग्जांपल के लिए दिए हैं। ठीक है, 20 और 80 इतनी लाइंस का ज़रूरत नहीं होती। इवन दो आरएसआई में रेंजेस भी काम करती हैं, लाइक यू कैन सी दिस एज अ डबल बॉटम। एक डबल बॉटम है और एक इन्वर्टेड एम है जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है, बट आरएसआई में आप डबल बॉटम देख के यहाँ पे बाय कर सकते हो और आपको ये टारगेट भी मिलता है, बट यहाँ नहीं दिख रहा है। तो रेंजेस भी काम करती हैं, लाइक यू कैन ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन ऑन आरएसआई, यू कैन इवन गो फॉर डबल टॉप्स, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स और ट्रेंड लाइन चैनल्स इन आरएसआई वो काम करते हैं, बट दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक एंड वील डिस्कस any other day about that. Today we are predicting reversals and predicting reversals before actually even any candle is formed. Okay, so let me come to this chart now. This is a bank nifty chart. This is 40, this is 60, as you can see this is 70, this is 80, this is 20. Okay, so now I was talking about that I booked a good profit today with this strategy, and I'm gonna show you how. See, I haven't drawn any line, any trend line, any horizontal line, nothing, because I'm just showing you how this strategy works simple. ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी नहीं है एक्चुअली, दिस इज़ अ प्रिडिक्शन ऑफ रिवर्सल्स एंड हाउ वी सी मूवमेंट ऑफ प्राइस विद स्ट्रेंथ। ओके, ये प्राइस मूवमेंट को मैं स्ट्रेंथ के साथ आपको दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी नहीं है। दिस इज़ अ बिग टॉपिक and we can cover it any day if you want. Okay, also I need suggestions from you all on which topics you need upcoming videos, so simply go in comment section and let me know what all I can do for you. We are trying to simplify trading as simple as we can. So let's start now. Okay, तो मैंने देखा
यहाँ पे एक टॉप बनाया मार्केट ने, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पे एक टॉप बनाया मार्केट ने जो कि ये कैंडल थी, ओके। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई और एक टॉप बनाया जो कि ये कैंडल थी 43446। फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप में एक अप ट्रेंड है, ठीक है। फर्स्ट टॉप से सेकंड टॉप काफ़ी दूर है, ओके। यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टॉप, बट व्हेन कमिंग टू RSI फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप नीचे हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ कितनी फॉल हो चुकी है, स्ट्रेंथ कितनी फॉल हो चुकी है, दैट वी आर अप एज अ प्राइस, एज अ कैंडल वी आर अप, but strength has moved down. I shorted the market right away here. Actually, I am a option buyer, so I bought put option right away here and booked it here somewhere here. Like this needs experience, but yeah, you can do it. So from here to here, I captured almost 170 to 180 points in Bank Nifty. Only this strategy. This is called RSI divergence. You must have heard about RSI divergence, but it works beautifully. Okay, I am going to show you more. All you need is chart and RSI settings. As I said, you can reverse the video or you can watch it again. So ये Thursday का chart है. This is Thursday expiry. Market was moving down with this swing. Actually market was in range, this range. इस range में थी market और range के बाद भी RSI बढ़ रहा था. RSI was moving up. So this was where I bought a call on Thursday. This area. Strength was increasing, market was not. Okay, market was in range with these swings. Strength was increasing. I bought a call option here and it turned out to be 0 or 0 whatever you say, that I booked somewhere here. Yeah, I booked here after rejection. This point turned out to be 400 points trade for me in the money option. If these points are not clear for you, then it means you are a beginner, complete beginner, and we are here for you. You can comment any query, anything that you want. So here, when market was continuously moving up but strength was down, nothing happened. You know why? Because this is actually closing time. At this time we cannot create any position. हम इस टाइम पे कुछ नहीं खरीद सकते और ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी काम नहीं करती, बट हम इसको 12 बजे 11, 12, 1 बजे के बाद ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। हम इसे इंट्राडे के लिए यूज़ कर रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट टाइम फ्रेम में। एंड दिस इज़ नॉट बिकॉज स्ट्रेंथ वॉज लो, सिंस द स्ट्रेंथ वॉज एक्चुअली लो बिकॉज इट वॉज अ क्लोजिंग टाइम. This prediction is for reversal, and when we are seeing it in 5 minutes time frame, then only it is good because it is intraday. We are seeing it for reversal. The prediction is for reversal, and when we are seeing it in 5 minute time frame, it is just for intraday. So intraday predictions are only till 1:30 last. After that, you cannot create a position here at 3 PM for intraday. That's why it failed here, but it worked here. See. This is also a day change. That was also a day change. Actually, it is working on day change, but we'll not focus on this type of trade because risk is high, risk is more. And when we are getting intraday, then why to risk more? ठीक है, जब हमें इंट्राडे में अच्छी स्ट्रेटेजी मिल रही है, जब हमें इंट्राडे में एक अच्छी पोजीशन क्रिएट करने को मिल रही है, तो हम क्यों अपना रिस्क बढ़ाएं? ठीक है, तो यहाँ पे भी काम कर रही है, डे चेंजेस में भी काम करती है. सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ वर्किंग. वन हाई, सेकेंड हाई, स्ट्रेंथ लो, मार्केट वेंट डाउन इमीडिएटली. सो काम कर रही है, बट रिस्क ज़्यादा है, तो हमें डे चेंज पे ट्रेड्स नहीं लेनी. हमें 11, 12, 1 लास्ट, ओके 11 बजे 10 बजे से पहले मिले, इट्स परफेक्ट टाइम टू ट्रेड. या यू कैन सी हियर इट्स इवन अ डे चेंज हेयर ऑल्सो. सी स्ट्रेंथ मार्केट नीचे है, स्ट्रेंथ स्टेबल और ऊपर है, तो मार्केट ऊपर गई. ठीक है, ये काम करती है. आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा अपनी उसके साथ कंबाइन करके अपने चार्ट्स में. RSI को जैसे मैंने बताया सेटिंग्स को अप्लाई कीजिए, चार्ट्स खोलिए, 5 मिनट्स लगाइए, RSI अप्लाई कीजिए और फिर उसको बैक टेस्ट कीजिए और आप देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है. कुछ नहीं है, आपको बस थोड़े से साइकोलॉजिकल लेवल्स में बता देता हूँ, उनका ध्यान रखना है. लाइक 42 400, 42 500,
ये जो होते हैं ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं जो सबके दिमाग में होते हैं। जैसे 40,000 बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा लेवल था जो वो नहीं तोड़ पा रही थी, 42,000, 43,000, एक साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, तो यहाँ पर रिस्क नहीं लेना, ठीक है। बाकी आप लेवल्स, प्राइस एक्शंस अगर नहीं जानते हैं तो आप सीख सकते हैं, बिल्कुल। आई विल बी टीचिंग यू फॉर फ्री हेयर, ओके। सो अगर आप नहीं जानते हैं तो विल बी टीचिंग यू, और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो जस्ट कॉमेंट अस। तो मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। दिस वॉज स्टेबल, मार्केट मेड अ लो, अगेन मूव्ड अप with a swing, again made a low, but strength was increasing. At this point, when market is continuously making a second low, or you can say a double bottom, market is making a second low, आप यहाँ पे market पे call ले सकते हैं. You can go long here. Even though many traders will see many things like out here, but you have to see, जैसा आपको देखना है यहाँ पे आप मार्केट ने दोबारा से एक बॉटम बनाया और स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली बढ़ रही थी, तो हम यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। आपको 1:2, 1:3 आराम से मिल सकता है इस ट्रेड में। अगर डाइवर्जेंस बढ़ा है तो आपको 1:5, 10 बिल्कुल मिल सकता है। लाइक आज मैंने ओनली 25 के स्टॉप लॉस से 170, 180 पॉइंट्स कैप्चर किए, एंड ऑन लास्ट थर्सडे ऑल्सो 20-25 के स्टॉप लॉस से मैंने 400 पॉइंट्स कैप्चर किए। तो डाइवर्जेंस अगर बड़ा है, आपको एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, उसके बाद आप ले सकते हो। दिस डोंट वर्क एवरी डे, डेली काम नहीं करता, क्योंकि हमें रिवर्सल्स प्रिडिक्ट करना है एंड वो डेली नहीं होता, ठीक है। हम फोर्स नहीं कर सकते रिवर्सल को, वी कैन नॉट फोर्स के रिवर्सल आ गया नहीं, वो डेली नहीं आएगा। जब होगा तब आपको क्लियरली दिखेगा, पर ज़बरदस्ती नहीं करनी। इस स्ट्रैटेजी में होगा, आपको दिखेगा क्लियरली, आपको डाइवर्जेंस दिखेगा, ठीक है। वी हैव मोर स्ट्रेटजीज दैट वर्क डेली एंड मैनी अदर थिंग्स दैट गो कंसिस्टेंट विद RSI एंड ऑन डेली बेसिस। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन दोज टॉपिक, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वी विल बी अपलोडिंग more videos on amazing topics, so stay tuned, subscribe us and press the bell icon for daily updates. This is as simple as I told you, very simple strategy. I could have explained this in YouTube shorts also, so simple. Market नीचे है, strength ऊपर जा रही है, you can go long. And what we saw today, market नीचे ऊपर जा रही थी, strength नीचे आ रही थी, strength was decreasing, strength was making the similar tops, but market was making new highs, तो हमने शॉर्ट किया। और ऐसे ही होता है लॉन्ग के केस में, जब मार्केट नीचे जा रही होती है बट स्ट्रेंथ ऊपर जा रही होती है। ये RSI डाइवर्जेंस है एंड दिस इज़ वेरी सिंपल। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चार्ट प्लस RSI। 60-40 इज़ बेस्ट। 60-40 मैंने क्यों लगवाया, वो इसलिए कि 60 से ऊपर अगर आपको डाइवर्जेंस मिलता है तो वो बहुत अच्छा होता है, और 40 से नीचे अगर मिलता है तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 40 से नीचे इज़ ओवरसोल्ड, जहाँ से मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकती है। तो अब अगर आपको रिवर्सल के पॉइंट पे ही डाइवर्जेंस मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा है, और 60 से ऊपर इज़ ओवरबॉट, तो अब मार्केट वहाँ से भी कभी भी रिवर्सल कर सकती है। तो मार्केट ओवरसोल्ड, ओवरबॉट एरियाज़ में ज़्यादा नहीं रहती। तो जब भी मार्केट ओवरसोल्ड होगी तो रिवर्स करेगी, ओवरबॉट होगी तो रिवर्स करेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। हाँ, हो सकता है रेंज में रह के आ जाए। होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड वील बी बैक विद एन अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो।